وہ ہارون کاتوانی تھا، گاؤں کا نیا سردار اور حویلی کا سب سے بڑا اور غسیل آدمی۔ بچپن میں ماں کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کی نفرت اور ظلم نے اسے سفاک اور پتھر دل بنا دیا تھا، جبکہ اس کا نکاح شوخ اور چنچل اس سے 8 سالہ چھوٹی مسکان سے ہوا تھا، جو اس کی سوتیلی ماں کی یتیم بھانجی تھی۔ وہ معصوم اس کی نفرت کی بھینٹ چڑھی تھی، جسے وہ شادی کی پہلی رات بے دردی سے مسخ کر چاہ چکا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا اسی معصوم سے عشق کر بیٹھے گا۔ جب 2 سال بعد واپس لوٹا اور اپنے کمرے میں اسے گہری نیند سوتے دیکھا تو مبہوت رہ گیا، پر اسے دیکھتے ہی خوف سے مسکان چارپائی پر بیٹھی اپنے ہنائے ہاتھوں کو تک رہے تھے، جن پر ابھی تازہ مہندی کی خوشبو باقی تھی۔ اس کا نکاح ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہارون کاتوانی سے ہوا تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ آس پاس عورتوں کی سرگوشیاں کانوں میں پڑ رہی تھیں، جو اس کے دل کی بے چینی کو اور بڑھا رہی تھیں۔ اتنی نازک سی بچی ہے، یہ تو ظالم جابر ہارون کاتوانی کے نکاح میں چلی گئی، ایک عورت نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، سنا ہے رحم نام کی چیز ہی نہیں اس میں، دوسری نے سرگوشی کی۔ کل ہی شفیق بتا رہا تھا کہ اس نے اپنے ایک بندے کو اپنے ہاتھوں سے مار کر پھینک دیا تھا۔ توبہ توبہ، اس یتیم بچی کی تو اللہ ہی نصیب اچھے کرے۔ مسکان نے یہ باتیں سن کر اپنے آنسو بے دردی سے پونچھ ڈالے۔ وہ یوں تو ہمیشہ خوش مزاج، شرارتی اور نرم دل لڑکی تھی، لیکن آج ان عورتوں کی سرگوشیوں میں جیسے اس کی تقدیر کی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ وہ خاموش نہیں رہ سکی۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور تیز نظروں سے ان عورتوں کی طرف دیکھا۔ خالہ، تمہاری مسکان کو توڑنے والا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا، اس نے اپنی روایتی شوخی کے ساتھ کہا۔ یہ جو تمہارا ہلاکو خان، کیا نام ہے اس کا؟ تبھی ایک لڑکی کی ہنسی چھوٹ کے، ہلاکو نہیں، ہارون۔ مسکان نے کندھے اچکائے اور بے پرواہی سے بولی، ہاں ہاں وہی، بس دیکھنا اگر سیدھا نہ رکھا نا تو میرا نام بھی مسکان نہیں۔ عورتیں مسکان کے اعتماد اور بے خوفی پر مسکراتیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی ہمیشہ خوش مزاج رہی ہے، نہ ڈر ہے، اور سب سے بڑھ کر خود کو کمزور ثابت کرنا نہیں جانتی۔ لیکن وہ بھی جانتی تھی کہ جس آدمی سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں، ایک سخت گیر، بے رحم اور خود سر مرد ہے، جس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں۔ مسکان نے تھوڑا جھک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ مہندی کی خوشبو اب کچھ مدھم پڑ رہی تھی، بالکل اس کی زندگی کی طرح، جو چند گھنٹوں میں بدل چکی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے مرحوم والدین کی یادیں آئیں، ان کا پیار، ان کی نرمی، اور پھر حقیقت نے جھنجھوڑا۔ اب وہ اس شخص کی بیوی تھی جس کے بارے میں صرف خوفناک کہانیاں ہی سنی تھیں۔ مسکان، کسی نے پیچھے سے پکارا۔ وہ چونک کر مڑی تو سامنے اس کی سہیلی عائشہ کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی۔ تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ عائشہ نے دھیرے سے پوچھا۔ مسکان نے ایک پل کو سوچا، پھر آنکھوں میں شرارت کی چمک لاتے ہوئے بولی، ڈر؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہارون کاتوانی واقعی ویسا ہے جیسا لوگ کہتے ہیں تو پھر تو بڑا مزہ آئے گا، مقابلہ برابر کا ہوگا۔ عائشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مسکان، یہ کھیل نہیں ہے، وہ آدمی، وہ واقعی خطرناک ہے۔ مسکان نے مسکراتے اس کا ہاتھ دبایا، اور میں بھی کوئی عام سیڑھی کی گڑیا نہیں ہوں عائشہ، اگر وہ پتھر ہے تو میں پانی ہوں جو پتھر میں بھی راستہ بنا لیتی ہے۔ عورتیں اس کے الفاظ سن کے ایک بار پھر مسکرا دیں۔ وہ جانتی تھی کہ مسکان بے حد نرم دل اور محبت کرنے والی ہے، لیکن اس کے اندر ایک چنگاری بھی ہے، ایک ضد جو اسے کمزور نہیں پڑنے دیتی۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، نہ حالات کے آگے، نہ لوگوں کے خوف کے آگے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ہارون کاتوانی، جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، وہ اس آفت کی پرکالہ مسکان کو کیسے سنبھالے گا۔ یہ شاید یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ مسکان اسے کیسے سنبھالے گی۔ سرسبز میدانوں، اونچے درختوں اور جاگیردانہ نظام کے سائے میں بسی کاتوانی حویلی، جہاں طاقت اور خاندانی وقار ہی سب کچھ تھا، وہاں جذبات اور محبت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ حویلی کاتوانی خاندان کی تھی، جہاں سردار ہارون کاتوانی کی حکمرانی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کے حکم کو حرف آخر مانتے تھے، اور اس کی سخت طبیعت کے باعث کسی کو اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ہارون کاتوانی، ایک ایسا نام جس سے پورا گاؤں کانپتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں طاقت، رگوں میں غرور اور دل میں سختی تھی۔ وہ محبت جیسے الفاظ کو کمزوری سمجھتا تھا۔ زندگی نے اسے کبھی پیار کرنا سکھایا ہی نہیں تھا،
और उसकी माँ बचपन में दुनिया से रुखसत हो गई और सौतेली माँ जुबैदा बेगम ने हमेशा उसके दिल में जहर घोला। वो उसे बार बार ये यकीन दिलाती रही कि जज्बात और रिश्ते सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए होते हैं और ताकतवर लोग सिर्फ हुक्म देने के लिए पैदा होते हैं। उसी गांव में कातवानी हवेली के करीब एक छोटे से घर में मुस्कान रहती थी, जो अपने चचा के ज़ेरे साया पली बड़ी थी। उसके वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, मगर उसके चचा और चची ने उसे कभी यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। मुस्कान शौक, चंचल और ख्वाब देखने वाली लड़की थी। उसकी आंखों में मोहब्बत के ख्वाब थे। उसका मानना था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत है, ना कि धौंस या धमकी। मुस्कान हंसते हुए बोली, चचा जान, एक दिन मेरा भी कोई राजकुमार आएगा जो मुझे शहजादी बनाकर अपने साथ ले जाएगा। चचा मुस्कुराकर बोले, अरे बेटी, दुनिया में राजकुमार कम और जालिम ज्यादा होते हैं। ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं, बस हकीकत से नजरें मत चुरा लेना। मुस्कान हंसती। वो कहाँ जानती थी कि उसके नसीब में एक ऐसा जालिम लिखा है जिसके दिल में मोहब्बत की जगह सख्ती थी और जिसके लिए रिश्ते महज एक खेल थे। एक दिन गांव में दुश्मनी की आग भड़क उठी। मुस्कान के चचा का बेटा शाहिद हारून कादवानी के खास आदमियों से किसी मामूली बात पर झगड़ पड़ा। गाली गलौज से बात बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई और देखते ही देखते खंजर निकल आए। हारून के आदमी को चोट आई और वो खून बहता देखकर इंतकाम की कसम खा बैठे। गांव में चेमगोइयां शुरू हो गई कि अब कादवानी हवेली खामोश नहीं बैठेगी। हवेली में जैसे ही खबर पहुंची, जुबैदा बेगम ने मौका गनीमत जाना। जुबैदा बेगम बोली, सरदार हारून, ये तुम्हारी इज्जत का मामला है, दुश्मनों को सबक सिखाना होगा। हारून की नजरें शोला बरसा रही थी। उसने कुर्सी की पुष्ट पर हाथ मारा, मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा। जुबैदा बेगम मुस्कुराते हुए बोले, ताकतवर लोग खून से नहीं अक्ल से बदला लेते हैं। अगर तुमने उस लड़की से शादी कर ली तो वो खानदान हमेशा के लिए तुम्हारे काबू में रहेगा। हारून के चेहरे पर तलखी आई। शादी? ये फजूल बंधन मेरे लिए नहीं, मैं रिश्तों पर यकीन नहीं रखता। जुबैदा बेगम चालाकी से बोली, लेकिन अगर ये रिश्ता तुम्हें फतह दिला सकता है, तुम्हारे दुश्मनों को हमेशा के लिए खामोश कर सकता है। हारून गहरी सोच में पड़ गया। अगर शादी उसकी जीत की अलामत बन सकती है तो ये सौदा बुरा नहीं था। रात के अंधेरे में हवेली का दरवाज़ा जोर से खोला गया। गांव के लोग सहम कर पीछे हटके जब हारून कादवानी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। इनके कदमों की चाप जमीन पर गरज की तरह महसूस हो रही थी। मुस्कान, जो अभी तक इस सब से बेखबर थी, सहन में अपने चचाजाद बहन फारिया के साथ बैठी हंसी मजाक में मगन थी। जब अचानक हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई और अंदर हारून के आदमी घुस आए। मुस्कान कहाँ है? इनमें से एक आदमी धाड़ा। फारिया का रंग फक हो गया, जबकि मुस्कान ने हैरानी से देखा। मैं यहाँ हूँ, क्या बात है? सरदार हारून कादवानी ने फैसला किया है कि तुम्हारा निकाह उनके साथ होगा। ये अल्फाज किसी बिजली की तरह गिरे। मुस्कान की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? मगर क्यों? हारून खुद आगे बढ़ा। उसकी आंखों में सख्ती और बेरहमी थी। तुम्हारे चचा के बेटे ने मेरे आदमी पर हाथ उठाया था, अब यह बदला लेना जरूरी था, मगर उसका मुझसे क्या ताल्लुक? मुस्कान का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ। हारून के लहजे में सर्द महरी थी। तुम मेरी हो चुकी हो मुस्कान, निकाह अभी होगा और तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मुस्कान के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो इससे बेरहम शख्स के साथ जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसने नजरें उठाई, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं नहीं करूंगी तुमसे निकाह हारून कादवानी, और जानती हूँ कि तुम कितने बेरहम शख्स हो। हारून की आंखों में एक लम्हे को शोला उभरा, फिर वो सर्द लहजे में बोला, तुम्हारी हाँ या ना मेरे लिए बेमायनी है। तुम जो भी महसूस करो, अब तुम सिर्फ मेरी हो। तभी एक औरत जबरदस्ती उनके दरवाजे से अंदर घुसी और मुस्कान के सर पर चादर उड़ाने लगी। रात के साए गहरे हो चुके थे। कादवानी हवेली के बड़े दरवाजे पर धीमे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जबरदस्ती निकाह के बाद जब हारून कादवानी किसी जरूरी काम से बाहर चला गया तो हवेली के नौकर और गार्ड्स मुस्कान को उसके चचा के घर से उठाकर कादवानी हवेली ले जाने के लिए तैयार खड़े थे। मुस्कान सहमी हुई, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ अपने हिनाई हाथों को देख रही थी। वो मेहंदी जो कभी मोहब्बत की अलामत होती थी, आज जबरदस्ती की याद दिला रही थी।
कमरे में मौजूद औरत, जो शायद जुबैदा बेगम की खास मुलाजमा थी, उसने अपने सख्त लहजे में कहा, चलो देर मत करो, सरदार हारून कादवानी का हुक्म है। मुस्कान ने एक नज़र अपने चचा की तरफ देखा, जो उसके सर पर हाथ रखकर बेबसी से रो रहे थे। चचा सिसकते हुए, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। मुस्कान का दिल कांप गया। चचा, क्या वाकई आपने मेरा सौदा कर दिया? चचा ने सर झुका लिया। नौकर और गार्ड्स ने कोई और वक्त ज़ाय किए बगैर मुस्कान की कलाई पकड़ी और बाहर की तरफ ले जाने लगे। छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुस्कान ने मज़ाहमत की, मगर वो तन्हा थी और उनकी ताकत के आगे बेबस। दो गार्ड्स ने उसके दोनों बाजू सख्ती से पकड़ लिए और उसे हवेली की तरफ ले जाने लगे। बाहर एक बड़ी स्याह गाड़ी खड़ी थी, जिसमें हारून कादवानी अपनी मखसूस शान और शौकत के साथ बैठा मुस्कान का इंतज़ार कर रहा था। इसकी नज़रें सपाट थीं, चेहरा बेतासुर, जैसे निकाह के बाद कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। नौकरों ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो मुस्कान को हारून के बराबर वाली सीट पर बिठाने लगे, हारून का सख्त सर्द और जहर में डूबा लहजा गूंजा, इसे पिछली सीट पर बैठाओ, ये इतनी काबिल नहीं कि मेरे साथ बैठे। मुस्कान के अंदर जैसे आग लग के उसकी आंखों में यकदम नफरत की चमक उभरी। वो ज़बरदस्ती का निकाह दुख सह चुकी थी, मगर ये तजलील, ये वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुस्कान गुस्से से, अगर मैं इतनी काबिल नहीं तो मेरे नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने क्यों आए थे? मेरी दहलीज पर कदम क्यों रखा था? गाड़ी में यकदम खामोशी छा गई। हारून कादवानी, जो हमेशा अपनी मर्जी का मालिक था, पहली बार किसी की जुबान से ऐसी बात सुन के साकित रह गया। वो मुस्कान की तरफ देखने लगा, जैसे कुछ लम्हों के लिए उसे समझ ही ना आया हो कि ये लड़की इतनी जुर्रत कैसे कर सकती है। हारून चेहरे पर हल्की सी शिकन, मगर लहजे में वही सख्ती। मैंने जो किया वो अपने फ़ायदे के लिए किया, तुम्हारी हैसियत वही है जो मैंने तुम्हें दी है। मुस्कान तंजिया हंसी के साथ, हाँ मतलब अपनी मर्जी से मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना तुम्हारा हक है और मुझे इस पर बोलने का भी इख्तियार नहीं। हारून की मिठियाँ बीच गई। ये पहली बार था जब किसी ने उसे उसके मुंह पर जवाब दिया था। मुस्कान की आंखों में आंसू थे। गाड़ी हवेली के बड़े आहनी दरवाजे के अंदर दाखिल हुई और जैसे ही रुकने की आवाज़ आई, नौकरों ने फौरन दरवाज़ा खोला। मुस्कान ने आखिरी बार बाहर की खुली फजा को देखा, जैसे वो जानती हो कि अब उसकी आज़ादी छिन चुकी है। उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ एक अजीब सी बगावत थी, मगर वो बेबस थी। उतर जाओ, नौकर ने सख्त लहजे में कहा। मुस्कान ने गहरी सांस ली और गाड़ी से नीचे उतरी। कादवानी हवेली की दीवारें बुलंद थीं, दरवाजे लोहे के, जैसे किसी नाकाबिल तस्खीर किले में दाखिल हो रही हो। वो जानती थी कि ये एक ऐसी पनाहगाह थी जहाँ उसकी मर्जी का कोई इख्तियार नहीं था, एक ऐसी दुनिया जहाँ बस हुक्म चलते थे, जज्बात नहीं। हारून कादवानी जब इसका शोहर था, बेतासुर नजरों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई नरम जज्बात थे, न किसी किस्म की तसल्ली। वो खामोशी से गाड़ी से निकला और बगैर कुछ कहे अंदर की तरफ बढ़ गया। मुस्कान की हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर वो अपने अंदर उठते तूफान को काबू में रखे हुए थी। नौकरानियों ने उसे जनान खाने के एक बड़े कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। ये कमरा शायद किसी शहजादी के रहने के लायक था। भारी सुनहरी पर्दे, दीवारों पर झूलते फानूस, कलीनों की नरमी, मगर ये सब मुस्कान के लिए किसी सुनहरे पिंजरे से कम नहीं था। बीबी जी, कपड़े बदल लें, सरदार कभी भी आ सकते हैं, एक मुलाजमा ने धीमी आवाज में कहा, मगर उसके लहजे में वही सख्ती थी जो कादवानी खानदान के हर फर्द में पाई जाती थी। मुस्कान ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा। सरदार? वो कोई सरदार नहीं, एक बेरहम इंसान है। रात गहरी हो चुकी थी जब दरवाज़ा आहिस्ता से चिरचिरा कर खुला। हारून कादवानी अंदर आया। उसकी नजरें गहरी और चेहरा संगीन था। उसकी मौजूदगी ही इतनी वज़नी थी कि कमरे की हवा बोझल हो गई। मुस्कान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि जो कुछ होने वाला है वो इसकी जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब बन सकता है। हारून आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। मुस्कान ने खौफ और बेबसी के मारे एक कदम पीछे हटाया, जैसे उसे करंट लग गया हो। हारून के माथे पर शिकन उभरी, जैसे किसी ने उसकी अना को शदीद ठेस पहुंचाई हो। उसने एक भवें ऊपर उठाई और मुस्कान को इस अंदाज में देखा जैसे वो कोई नादान लड़की नहीं बल्कि संगीन गलती करने वाली मुजरिम हो।
तुमने मुझसे दूर होने की जुर्रत कैसे की मुस्कान? मुस्कान ने आंखों में नफरत लिए कहा, मैं अपनी हदूद में रहना चाहती हूँ। हदूद? हारून ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ सर झुकाया, फिर अचानक एक झटके से मुस्कान को अपनी तरफ खींच लिया। वो नाजुक पुर्जे की तरह उड़ती हुई उसके मजबूत बाहों में आ गिरी। छोड़ो मुझे, मुस्कान ने मुज़ाहमत की, मगर हारून की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो अपनी जगह से हिल भी न सकी। हारून के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। मुस्कान, तुमने जो अभी किया आइंदा मत दोहराना। मुझे रद्द करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम इससे भी बुरा होगा। माइंड इट। मुस्कान की आंखों में बेबसी के आंसू झिलमिलाने लगे, मगर उसकी रूह अभी भी सरकशी पर अड़ी हुई थी। जो भी कर लो, अब तुम सिर्फ मेरी हो, जंगली लड़की। हारून ने सरगोशी की। उसके लहजे में मलकियत और गरूर था। मुस्कान के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। तुम मुझे कोई पालतू बिल्ली समझते हो? हारून ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। नहीं, बिल्लियां तो प्यारी होती हैं, तुम ज्यादा खतरनाक हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुस्कान ने दांत पीस कर कहा। हारून ने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया, जैसे वो इसकी बेबसी का लुत्फ ले रहा हो। ये नफरत ज्यादा दिन नहीं रहेगी मुस्कान, देखना जल्द ही ये मोहब्बत में बदल जाएगी। ये कहकर वो एक फातेह की तरह अपनी गिरफ्त ढीली करता हुआ पीछे हटा और बिना पलटे दरवाजा खोल के कमरे से निकल गया। मुस्कान की सांसें अब भी बेतरतीब थीं। ये निकाह तुम्हारी जीत की अलामत था, मगर देखना एक दिन ये तुम्हारे गुरूर की बर्बादी बनेगा। उसने खुद से सरगोशी की और उस रात अपनी बेबसी को अपनी ताकत में बदलने की कसम खा ली। जब रात का आखिरी पहर खत्म होने को आया तो हारून खामोशी से उठा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बेनियाजी से अपना कोट सीधा करते हुए कमरे से निकलने लगा। मुस्कान ने लरसते हाथों से खुद को समेटा, मगर उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं रही जो कल थी। आज वहां आग थी, नफरत के, इंतकाम के। ये जुल्म ज्यादा देर नहीं चलेगा सरदार हारून कादवानी। उसकी कमजोर मगर पुरअज़म आवाज ने हारून के कदम रोक दिए। तुम जो भी कर लो, अब भागकर तुम कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे नाम की मोहर तुम्हारी तकदीर पर लग चुकी है, और चीज मेरी हो जाए वो मरते दम तक मेरी ही रहती है। उसकी बात पर मुस्कान ने आंसू बेदर्दी से पूछे। वो रात जिसने मुस्कान की मासूमियत को बेदर्दी से रोन डाला, हारून कादवानी के लिए महज एक काम रात थी। अपनी मर्जी थोप कर, अपना हक जताकर वो बिना पलटे, बिना किसी नरमी के हवेली से निकल गया, जैसे यहाँ कभी उसकी कोई बीवी थी ही नहीं। वो इस रात को, इस लड़की को और इस निकाह को याद रखने के काबिल भी न समझा। अगली सुबह हवेली की फिजा में जुबैदा बेगम की तंज की बाज़गश थी। बहू हो या बांदी, इस हवेली में औरत की हैसियत हमेशा एक सी रही है। जुबैदा बेगम ने नफरत से कहा, तुम्हारा शौहर तो तुम्हें इस कैद में डालकर खुद आज़ाद हो गया। मुस्कान ने पहली बार शिद्दत से महसूस किया कि वो सिर्फ हारून की बीवी नहीं, बल्कि इस हवेली की बांदी भी बन चुकी है। वो तेजी से अपने कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फूट फूट कर रोने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा हारून? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो दीवार पर लगी हारून की तस्वीर को देखती गई, जैसे वो इस खामोश चेहरे से ढेरों शिकवे कर रही हो। तुम तो मेरे शौहर थे, मगर तुमने तो मुझे एक चीज़ से ज़्यादा कुछ समझा ही नहीं। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती? क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? उसने रोते रोते तकिए में चेहरा छुपा लिया, मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ बिलाल कादवानी खामोशी से इस दरवाजे के बाहर खड़ा था। बिलाल कादवानी हारून का कज़न, सबको हंसाने वाला, सबसे मजाक करने वाला, मगर अंदर से एक नरम दिल इंसान। वो जानता था कि यह निकाह एक जुल्म था, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था, और आज वो दरवाजे के पार खड़ा था। मुस्कान की सिसकियां सुन रहा था और अजीब बेबसी महसूस कर रहा था। ये लड़की इस सब के लायक नहीं थी, उसने दिल में सोचा। मुस्कान नहीं जानती थी कि जब वो रोती थी तो कोई था जो खामोशी से उसे देखकर अफसुर्दा होता था। बिलाल ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक थी, मगर फिर खुद ही रुक गया। मैं इसे क्या कहूँ कि सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं जानता हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो खामोशी से पलट गया, मगर दिल में फैसला कर चुका था कि ये लड़की अकेली नहीं है, वो हमेशा इसका साथ देगा, चाहे वो समझे या ना समझे। बिलाल कादवानी वो शख्स था जो हमेशा मुस्कान की साइड लेगा, जो हारून के खिलाफ जाकर भी उसके हक में खड़ा होगा। मगर मुस्कान, वो इस हमदर्दी से बेखबर थी। लेकिन कब तक? अरे मुस्कान, नीचे उतरो, गिर जाओगी। बिलाल ने हाथ कमर पर रखकर ऊपर देखा।
जहाँ एक नाजुक सी लड़की आम के दरख्त की शाख पर बैठी मजे से आम खा रही थी। मुस्कान एक शरारती हंसी के साथ आम का छिलका नीचे फेंका, जो सीधा बिलाल के कंधे पे जा गिरा। वो कमबख्त लड़की, ये क्या हरकत है? बिलाल झुंझला गया। मुस्कान ने हंसते हुए आम के रस से भरे हाथ झाड़े। ओहो बिलाल भाई, आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे मैंने आप पर पानी का भरा मटका फेंक दिया हो। बिलाल ने गुस्से से ऊपर देखा। मुस्कान, अभी नीचे आओ, मैं तुम्हें सरदार हारून से शिकायत लगा दूंगा। मुस्कान ने आंखें घुमाकर आम की गुठली नीचे उछाली। अरे शिकायत? वो तो हवेली में है भी नहीं। 2 साल हो गए, किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी। अब तो लगता है भूल ही गए कि उन्होंने एक बीवी भी रखी हुई है। बिलाल ने सर हिलाकर एक गहरी सांस ली। बीवी हो पर लगती नहीं। सरदार हारून को कौन भूल सकता है? वो जब भी वापस आएंगे तूफान की तरह आएंगे। मुस्कान ने आम के बीज को चबाया और हल्की सी सरगोशी की। देखते हैं तूफान बड़ा होता है या मैं। फिजा में अचानक कुछ बदला, जैसे हवा के झोंके रुक गए हों। अचानक हवेली के दरवाजे पर गाड़ी की टायर घसीटने की आवाज़ गूंजी। बिलाल ने चौंक कर पीछे देखा और फिर उसकी आंखें फैल के मुस्कान, वो आ गया। मुस्कान जो दरख्त की शाख पर मजे से झूल रही थी, एकदम सीधी हो गई। उसकी हंसी लबों पर ही जम गई और दिल की धड़कन एक पल को रुक सी गई। कौन? सरदार हारून? हवेली के दरवाजे पर स्याह मर्सिडीज धूल उड़ाती हवेली में दाखिल हुई। दरवाजे पर पहरादार फौरन सीधे हो गए, जैसे किसी बादशाह की आमद हो। गाड़ी रुकी, दरवाज़ा खुला। चमकदार स्याह जूते जमीन पर नमूदार हुए। हारून कादवानी। 2 साल बाद वो तूफान वापिस आ चुका था। अंदर खबर फैलती ही हवेली की रौनक जाग उठी, मगर ये रौनक खुशी की नहीं, खौफ की थी। सरदार लौट आया है। नौकर भागम भाग अपनी जगह संभालने लगे। बावर्ची खाने में हलचल मच गई। जनान खाने में खुसर पुसर होने लगी। बिलाल कादवानी हल्का सा मुस्कुराया। लौट आया हारून, वही रौब, वही गरूर। मुस्कान जो बेखबर थी, दरख्त से उतरी, जनान खाने की तरफ भागी, मगर दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। ये दिल क्यों यूं धड़क रहा है? बाहर हवेली के दरवाजे पर वो खड़ा था, वही शख्स जिसने 2 साल पहले उसे एक बेवकत शय की तरह छोड़ दिया था। हवेली में एक सनसनी दौड़ गई। वो अब भी वैसा ही था, लंबा कद, सख्त चेहरा, वही गहरी आंखें जो सीधा दिल में उतरकर सांसें रोक देती थी। 2 साल पहले जो गुरूर और सख्ती उसकी आंखों में थी, वो अब भी थी, मगर उसके साथ कुछ और भी था, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यहाँ वापस क्यों आया है। सब खामोश थे। जुबैदा बेगम तेज कदमों से आगे बढ़ी। हारून बेटा, आखिरकार तुम वापस आ गए। उनकी आंखों में अजीब सी खुशी थी, जैसे वो किसी और मकसद के तहत उसकी वापसी की मुंतजिर थी। हारून ने सर्द महरी से उन्हें देखा। ये हवेली मेरी है, मैं जब चाहूँ वापस आ सकता हूँ। बिलाल जो अब तक खामोश खड़ा था, आगे बढ़ा। यार, तुमने हमें याद तो किया होगा। हवेली के दरवाजे पे खड़ा हारून अपने तेज जहराना निगाहों से पूरे आंगन का जायजा ले रहा था। सब कुछ वैसा ही था, वही बुलंद दरो दीवार, वही नौकर, वही सकूत, मगर कुछ था जो बदल चुका था। मुस्कान, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी नजरें उसे ढूंढ रही थी, मगर वो मौजूद होकर भी कहीं गायब लग रही थी। ये वही लड़की थी जिसे वो 2 साल पहले एक बोझ समझ के छोड़ गया था, मगर आज वो न जाने क्यों उसे तलाश कर रहा था। मुस्कान की झलक, हारून की बेख्तियार नजरें, जनान खाने से खनकती हंसी की आवाज़ उभरी। हारून कादवानी जो अभी तक अपने गुरूर के खौल में खड़ा था, बेख्तियार नजरें उस सिमत घुमाने पर मजबूर हो गया। किचन के दरवाजे पे वो खड़ी थी। मुस्कान, 2 साल बाद, मगर ये वही मुस्कान नहीं थी जो उसने छोड़ी थी। चेहरे पर नरमी की जगह ठहराव था, कमजोरी की जगह एक अजीब खुद एतमादी, और सबसे बढ़कर वो आंखें जिनमें अब ना कोई डर था ना इल्तिजा। हारून कादवानी जो कभी किसी की तरफ दूसरी नजर डालना अपनी तौहीन समझता था, आज जैसे सांस लेना भी भूल गया था। बिलाल जो ये मंजर दिलचस्पी से देख रहा था, मुस्कुराकर शौकी से सीटी बजाई। वाह सरदार, पहली बार तुम्हें नजरें जमाकर किसी को देखते पाया है। हारून का चेहरा एक पल को खजल सा हुआ, मगर अगले ही लम्हे वो अपने जज्बात को काबू में कर गया। 2 साल पहले वो एक नाजुक मासूम लड़की थी, आज वो पहले से ज्यादा शोख, ज्यादा चलाक और ज्यादा बेखौफ हो चुकी थी। मुस्कान ने एक पल के लिए हारून की नजरें बर्दाश्त की,
फिर हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तो आप वापस आ ही गए? मैं तो समझ बैठी थी कि हवेली की राह ही भूल गए हैं। हारून ने कुछ लम्हे उसे खामोशी से देखा, फिर सख्त लहजे में बोला, मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकता हूँ, मगर सवाल यह है कि तुम अब भी वही हो या बदल चुकी हो। मुस्कान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कदम आगे बढ़ाया। कभी कभी वक्त चीज़ों को इतना बदल देता है कि इंसान खुद को भी पहचान नहीं पाता। सरदार हारून। हारून ने हल्का सा सर झुकाया, जैसे उसकी बात का वजन महसूस किया हो, मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। मुझे परवाह नहीं कि तुम बदली हो या नहीं मुस्कान, तुम अब भी इस हवेली का हिस्सा हो और मैं वापस आ गया हूँ। जो कुछ भी था वहीं से शुरू होगा जहाँ से ख़त्म हुआ था। उसने इतनी गहरी नज़रों से मुस्कान को देखते हुए बोला कि मुस्कान का चेहरा पल भर में लाल हो गया, जबकि दूसरी जानिब पहली बार हारून कातवानी ज़ेर-लब मुस्कुराया था और ये फरीहा से बिल्कुल बर्दाश्त न हुआ, क्योंकि वो जान गई थी हारून कातवानी इतनी खूबसूरत लड़की जो उसके निकाह में हो उसे इग्नोर कैसे कर सकता है। फारिया हमेशा हारून के ख्वाब देखती रही, मगर जब वो मुस्कान की किस्मत में आया तो उसकी दुनिया ही उछड़ गई। अब वो हर पल मौका ढूंढती थी कि किसी तरह मुस्कान को नीचा दिखाए, उसे तकलीफ पहुंचाए और शायद उसे इस हवेली से हमेशा के लिए बाहर निकाल दे। मुस्कान ने पलकें झपकी, फिर एक तलख हंसी होंठों पर ले आई। 2 साल पहले जो ख़त्म हो चुका था वो अब दोबारा शुरू नहीं हो सकता। मुस्कान के अल्फाज के साथ ही हारून ने एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही लम्हे वो इसके बहुत करीब था। देखते हैं मुस्कान, देखते हैं कि तुम कितनी देर तक खुद को रोक सकती हो। उसने धीरे से सरगोशी की और मुस्कान को पहली बार लगा कि वो सांस लेना भूल गई है। उसकी गर्म सांसें उसके कान के करीब महसूस हो रही थी, जैसे वो हर लफ्ज़ के साथ उसकी हिम्मत आजमा रहा हो। तुम जितनी जिद करोगी उतनी ही खूबसूरत लगोगी, और जितना तुम भागोगी मैं तुम्हें पकड़ने के लिए करीब उतना ही आऊँगा। मुस्कान ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, मगर हारून ने नरमी से उसकी कलाई थाम ली। ये तो 2 साल पहले भी तुमने कहा था कि कुछ दोबारा नहीं होगा, मगर देखो ना, हम फिर वहीं खड़े हैं। तुम मेरी हो मुस्कान, और मैं वो सब वापस लूँगा जो इन 2 सालों में मुझसे छीना गया। मुस्कान ने अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश की। छोड़ो मेरा हाथ हारून। क्यों, क्या धड़कनें बेकाबू हो रही हैं? वो शोखे से मुस्कुराया। तुम्हारी गलत फहमी है, मैं तुम्हें बर्दाश्त करना सीख चुकी हूँ। अच्छा, वो मुस्कुरा कर बोला, तो फिर ये चेहरा लाल क्यों हो रहा है मोहतरमा? मुस्कान ने फौरन रुख मोड़ लिया, मगर हारून ने उसका चेहरा नरमी से अपनी तरफ मोड़ लिया। तुम जितनी देर चाहो इनकार करती रहो, मगर तुम्हारी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल सकती मुस्कान। मुस्कान ने बेबसी से खुद को उसकी नज़रों से बचाने की कोशिश की, मगर हारून ने अपनी उंगलियां नरमी से उसकी थोड़ी के नीचे रखकर उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। अब भी कहो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। मुस्कान की आंखों में चमक उभर आई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। तुम खुद को बहुत ख़ास समझते हो हारून, मगर मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूँ, तुम मेरे दिल पर वो राज नहीं करते जो तुम्हें लगता है। हारून ने मुस्कुराते हुए धीरे से उसके कान के करीब होकर कहा, अच्छा, तो फिर ये धड़कन क्यों बढ़ गई है? मुस्कान ने जल्दी से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। ये नफरत है, मोहब्बत नहीं। हवेली की फजा बोझल थी। सब नौकर खामोश खड़े थे, जैसे वो दोनों के दरमियान खींची हुई लकीर को देख रहे हों। बिलाल ने एक कदम आगे बढ़ाया। यार, पहले तो कुछ खा पी लो, 2 साल बाद आए हो, गुस्सा करने से पहले आराम तो कर लो। मुस्कान ने झट से कहा, हाँ हाँ बिलाल भाई, ठीक कह रहे हैं। 2 साल की ख्वारगी के बाद कहीं सरदार साहब का दिल पिघल न जाए। हारून ने एक सख्त नज़र मुस्कान पर डाली, जो मज़े से खड़ी उसे चिढ़ाने में मसरूफ थी। मुस्कान, वो गुस्से से धाड़ा। मुस्कान की शोख मुस्कुराहट और बेखौफ लहजे ने जैसे हारून के अंदर किसी छुपी चिंगारी को भड़का दिया था। ओफो, अभी तो आए हैं और पहले ही धाड़ने लगे। मैंने तो सुना था कि वक्त सब कुछ बदल देता है, मगर आप तो अब भी वैसे ही हैं, अब भी सड़ियल। उसने ये इतना आहिस्ता कहा था कि सिर्फ हारून और बिलाल ही सुन सके। बिलाल की तो हंसी न रुकी। वो जल्दी से खुद को संभालता हुआ पीछे हटा और शरारत से आंखें दबाकर वहां से भाग गया। मगर अब यहाँ से भागने की बारी मुस्कान की थी, क्योंकि हारून की सख्त नजरें उसी पर जमी थीं। मुस्कान ने पलट कर जाने का सोचा, मगर हारून ने कदम आगे बढ़ाया। पहली बार वो इतना करीब था कि मुस्कान को लगा जैसे हवा भी ठहर गई हो। वक्त कुछ नहीं बदलता मुस्कान, लोग बदलते हैं, और जो मुझे चैलेंज करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा हारते हैं। मुस्कान की मुस्कुराहट एक पल को मध्यम हुई, मगर उसकी आंखों में वही चमक बरकरार रही।
शायद इस बार तुम्हें हारना पड़े सरदार हारून कादवानी। हारून की नजरें उसकी आंखों पर उतरती चली गईं। तुम अभी भी वही नासमझ लड़की हो जो 2 साल पहले मेरी जिद में आ गए थे। मुस्कान ने जरा झुककर सरगोशी की। और तुम अभी भी वही मगरूर मर्द हो जिसे लगता है कि दुनिया की हर चीज उसके काबू में है। हारून की आंखों में वहशियाना जलन उभरे, एक ऐसा तासुर जो मुस्कान ने पहले कभी नहीं देखा था। शदीद मलकियत, जुनून और गुस्से में लिपटी हुई एक अजीब सी कशिश। वो एक झटके से आगे बढ़ा, इतना करीब कि मुस्कान को लगा जैसे उसके इर्द गिर्द की हवा भी घुटने लगी हो। तुम्हारी जुबान हमेशा इतनी लंबी रहती है या सिर्फ मेरे सामने चलती है? वो धीमे मगर सफाक लहजे में बोला। उसकी गर्म सांस मुस्कान के चेहरे से टकरा रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकती हो? सुनो लड़की, तुम जितनी मर्जी अकड़ लो, आखिर में तुम्हें वहीं आना पड़ेगा जहां मैं चाहूंगा। मुस्कान का दिल एक लम्हे को जोर से धड़का, मगर वो डरने की बजाय और करीब हो गई। बड़े आए मुझे झुकाने वाले, तुम क्या समझते हो मैं उन नौकरानियों की तरह तुम्हारे कदमों में गिर जाऊंगी? मेरे ख्वाब में भी ये न सोचना कादवानी। तुम जितना मुझे दबाने की कोशिश करोगे मैं उतना ही सर उठाऊंगी। हारून की आंखों में गहरी तारीकी उभरी, जैसे किसी ने उसकी जिद को आग लगा दी हो। मुस्कान, जुबान बंद रखो, वरना इस जुबान को काबू में रखना मुझे अच्छी तरह आता है। मुस्कान ने हंकारा भरते हुए तंजिया मुस्कुराहट दी। वाह कमाल है, मर्दों की सारी बहादुरी सिर्फ औरतों पर चलती है। मारना, धमकाना, धौंस देना, बस यही आता है ना तुम्हें? अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होती ना तो अपनी बातों से नहीं, अपने दिल से मुझे कायल करने की कोशिश करते। मगर तुम जैसे मर्द बस धमकी देना चाहते हैं, मोहब्बत करना नहीं। हारून का जब्त जैसे जवाब दे गया। एक पल के लिए उसके चेहरे पर वहशत उभरी, मगर फिर वो मुस्कुराया, एक ऐसा मुस्कुराता हुआ दरिंदा जो अपने शिकार को फांस चुका हो। मुस्कान, मैं मोहब्बत करना चाहूँ तो तुम्हारे जैसी 100 लड़कियों को लाइन में खड़ा कर सकता हूँ, मगर तुम खास हो क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो, चैलेंज देती हो और मुझे तोड़ने की कोशिश करती हो। उसने मुस्कान का हाथ सख्ती से पकड़ा। तुम समझती हो तुम मेरी जिद हो? नहीं, तुम मेरी मलकियत हो और मैं अपनी चीज पर किसी और की नजर बर्दाश्त नहीं करता। मुस्कान ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ। मुस्कान, मेरी जागीर बनने में जो मजा है ना, वो तुम्हें अभी पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मजा चिखा कर रहूंगा। हारून की गिरफ्त सख्त हो गई। मुस्कान ने दांत पीस कर कहा, कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुई। फिर तुम्हें सुधारना पड़ेगा और मैं तुम्हें सुधारना जानता हूँ। हारून ने मुस्कुराते हुए कहा, डराओ मत सरदार, क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना किसी डरपोक लड़की से नहीं बल्कि एक औरत से है जो तुम्हारे हर वार का जवाब देना जानती है। हारून के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रही, मगर उसकी गहरी नजरें मुस्कान के चेहरे पर जम के रह गईं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। 2 साल की दूरी के बाद आज वो पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े थे, मगर हारून अब भी वैसा ही था और मुस्कान, वो पहले से ज्यादा शोख, ज्यादा चालाक और ज्यादा बेखौफ हो चुकी थी। फारिया, जो हमेशा हारून को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते आई थे, मुस्कान से शदीद नफरत करने लगी थी। वो जुबैदा बेगम की भांजी थी और इसकी तरबियत में पलकर जवान हुई थी। अगर मैं हारून की नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। वो खुद से बुड़बुड़ाई और फिर उसने वो साजिश तैयार की जो मुस्कान की जिंदगी को तबाह कर सकती थी। एक रात जब हारून अपने कमरे में बैठा था, फारिया अंदर आई। तुम्हें कुछ दिखाना है हारून, कुछ ऐसा जो तुम्हें आंखें खोलने पर मजबूर कर देगा। हारून ने उसकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। फारिया ने मोबाइल निकाला और एक ऑडियो क्लिप चलाया। मुस्कान, तुम्हें मालूम है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर कभी कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये बलाल की आवाज़ थी। हारून की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। ये क्या है फारिया? फारिया ने मुस्तुई हमदर्दी से कहा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि 2 साल तक बलाल महज एक हमदर्द था? हारून, तुम तो यहाँ थे नहीं, लेकिन वो हमेशा मुस्कान के साथ था, हमेशा। ये जुमला आग में तेल का काम कर गया। रात की तारीकी में हवेली की बुलंदोबाला दीवारें किसी खामोश गवाह की तरह सब कुछ देख रही थी। सर्द हवा के झोंके आंगन में चल रहे थे, मगर अंदर का माहौल ज्यादा सर्द और कुशीदा था। मुस्कान कमरे में दाखिल हुई तो हारून कादवानी का चेहरा देखकर ठटक गई। उसकी नजरें आग बरसा रही थीं और उसके तेवर ऐसे थे जैसे आज कोई तूफान आकर रहेगा। मुस्कान ने एक नज़र उस पर डाली और अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए खामोशी से तकिया उठाया और सोफे पर लेटने की तैयारी करने लगी।
लेकिन अचानक हारून की धाड़ कमरे में गूंजी। लड़की जिसके साथ 2 साल अय्याशी की जिंदगी गुजारती रही हो, अब भी उसी के कमरे में रहना चाहती हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मुस्कान कांप के रह गई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे दीवारें भी लरस गई हों। इसके कदम वहीं जम गए। दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। उसने हारून की तरफ बेयकीनी से देखा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। हारून की आंखों में नफरत की चिंगारियां थीं। झूठ मत बोलो मुस्कान। वो लंबे लंबे डग भरते हुए उसकी तरफ बढ़ा। मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मुस्कान हैरत और खौफ के मारे एक कदम पीछे हटी, मगर हारून ने उसे एक झटके से पकड़कर दीवार से इतनी शिद्दत से लगा दिया कि मुस्कान को लगा कि उसकी कमर टूट जाएगी। आह! एक चीख उसके लबों से निकली, मगर वो फौरन खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे, मगर वो अपनी हिम्मत जमा करते हुए बोली, आप हमेशा गलत होते हैं। खुद को बहुत बड़ा तूफान समझते हैं, मगर हकीकत में आप बस इतना ही कहना था कि हारून का भारी हाथ उसके चेहरे पर पड़ा। मुस्कान के कदम डगमगा के उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पागल हो तुम, हारून धाड़ा। ये जो तुमने 2 साल किया है, इसका हिसाब देना होगा। मुस्कान को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को चीर कर रख दिया हो। वो अपनी बेगुनाही साबित करने की लाख कोशिश करती, लेकिन हारून का कहर और शक हर दलील पर भारी था। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन हारून के दिल में जहर भर चुका था। वो इसकी बात सुनने को तैयार ही ना था। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी और बलाल की कुर्बत की बातें पूरे घर में मशहूर हैं। मुझे मजीद कुछ सुनने की जरूरत नहीं। मुस्कान के अंदर की हिम्मत जैसे टूट गई। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटी और कमरे से बाहर निकल गई। मुस्कान हवेली की लंबी राहदारियों में भागती चले गई। उसके कदम बेसिम्मत थे, दिल बेकाबू था और जहन में हारून की धाड़ गूंज रही थी। अय्याशी की जिंदगी, दफा हो जाओ यहाँ से। ये अल्फाज कानों में किसी खंजर की तरह गूंज रहे थे। वो एक सुनसान कोने में जाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने क्या बिगाड़ा था? क्या कसूर था मेरा इतना कि मैं हारून कादवानी की बीवी हूँ? उसके आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे और उसके दिल में दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह हवेली के आंगन में सब जमा थे। नौकरों की सरगोशियां, घर के अफराद की नजरें और एक तनाव भरा माहौल, जिसकी वजह हारून कादवानी का गुस्सा था। ये हवेली मेरी है और यहाँ वही रहेगा जिस पर मुझे भरोसा हुआ। सब दम साधे खड़े थे, जबकि बलाल ने हैरत से हारून को देखा। ये क्या कह रहे हो? ये कि तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। हारून की आवाज़ गरज रही थी। उसके लहजे में एक अजीब काट थी। बलाल की आंखों में दुख उभर आया, मगर उसने खुद को संभाला। मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है हारून, और तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ वफादारी निभाई। हारून का लहजा जहर से भरा था। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? बलाल ने बेयकीनी से कहा। तुम मेरे साथ धोखा कर रहे थे बिलाल। बिलाल ने हारून के सख्त चेहरे को देखा। वो जानता था कि अब कोई दलील, कोई सफाई उसकी आंखों पर बंधी नफरत की पट्टी को हटा नहीं सकती। मुस्कान की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। वो बीच में आ गई। हारून, तुम गलत समझ रहे हो। मगर हारून की नजरें गज़ब से जल रही थीं। खामोश रहो मुस्कान। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे किसी ने मुस्कान के दिल में नश्तर चबो दिए हों। अब ये फैसला हो चुका है, मैं फारिया से शादी करने जा रहा हूँ। ये अल्फाज बिजली बन के मुस्कान पर गिरे। वो सुन हो चुकी थी, जैसे अंदर से मर गई हो। नौकरों में सरगोशियां होने लगी। फारिया के चेहरे पर एक फातियाना मुस्कुराहट फैल गई। मैं हार गई। मुस्कान के अंदर की हिम्मत खत्म हो रही थी। वो फटी फटी आंखों से हारून को देख रही थी, जो आज उसके वजूद को मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ था। वो रात मुस्कान की जिंदगी की सबसे तवील रात थी। वो बिखर गई थी, टूट चुकी थी, मगर खामोश नहीं रह सकी। अगली सुबह वो सीधा फारिया के पास पहुंची। ये तुमने क्यों किया फारिया? फारिया ने नखुवत से हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं हारून से मोहब्बत करती हूँ। और तुम कौन हो? एक यतीम लड़की। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं यहाँ पर। मुस्कान ने आंखों में बेयकीनी लिए कहा, मुझे लगा था कि तुम मेरी बहन जैसी हो, मेरा ख्याल रखने वाली। फारिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं सवेली की मालकन बनने वाली थी, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। मुस्कान की आवाज लरस गई। तुम्हारा वजूद ही मेरे लिए सब कुछ बर्बाद करने वाला है। फारिया की आंखों में जुनून था। मुस्कान के लब कुछ कहने के लिए खुले ही थे कि फारिया ने एक धक्के से उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फारिया। ये आवाज सुनते ही फारिया के कदम लरस गए। हारून वहीं खड़ा सब कुछ सुन चुका था
और उसके अंदर एक बिजली सी दौड़ गई, जैसे किसी ने उसकी रूह झंझोड़ दी हो। मुस्कान। उसने एक पल भी जाया किए बगैर मुस्कान को संभाला और अपनी बाहों में उठा लिया। मुस्कान, आंखें खोलो। मगर वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। फारिया के चेहरे पर अब खौफ था। मैंने कुछ नहीं किया हारून। वो पीछे हटी। बस करो फारिया, मुझे तुम्हारा असली चेहरा देखने में देर हो गई, मगर अब मजीद देर नहीं होगी। आईसीयू की रोशनी में हारून बैठा था, हाथों में अपना सर दबाए, अपनी गलती पर नादम। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें तकलीफ दी और तुम्हें गंवाने के करीब था। उसकी आंखें बंद थीं और दिल बेचैन था। अचानक उसने मुस्कान की मदम सी आवाज़ सुनी। हारून। उसने फौरन उसकी तरफ देखा। मुस्कान, तुम ठीक हो? काश तुम्हें पहले यकीन आ जाता कि मैं बेगुनाह थी। हारून के लब लड़से। मुझे माफ़ कर दो मुस्कान, मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ। मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसमें वही ठहराव था। हारून, तुम्हारे शक ने मुझे तोड़ दिया, मगर शायद मैंने भी तुम्हें गलत समझा। अगले दिन हवेली की फजा हैरत और खामोशी से भरी हुई थी। सबकी नजरें इस मंजर पर जमी थी जहां हारून कादवानी, जो कभी गरूर का पैकर था, बिलाल के सामने खड़ा था। मगर आज वो हारून नहीं था जो सिर्फ अपनी जिद के लिए जाना जाता था। बिलाल हैरान खड़ा था। मुझे माफ़ कर दो बिलाल, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। ये अल्फाज नहायत मुश्किल थे, मगर हारून के लहजे में खलूस और शर्मिंदगी थी। बिलाल ने पहले हैरत से उसे देखा, फिर हल्के से हंसा। अब माफ़ी मांग रहे हो तो निकाह का इंतज़ाम भी कर लो। किसका निकाह? हारून ने उलझ कर पूछा। बिलाल ने शरारत से मुस्कान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा? मेरा? हारून ने हैरानी से दोहराया। उसने एक नज़र मुस्कान को देखा जो खामोशी से खड़ी थी। चेहरे पर सुर्खी थी, मगर नजरें झुकी हुई थी। उसे वो सब कुछ याद आ रहा था जो उसने मुस्कान के साथ किया था। वो तकलीफ, वो बेएतमादी, वो गलत फैसले। क्या वो वाकई इस काबिल था कि उसे माफ़ी मिले? मुस्कान ने धड़कते दिल के साथ सर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी वही बेयकीनी थी। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मुस्कान ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर वो धीरे से बोली, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए मोहब्बत है तो मेरे पास माफ़ी है हारून। हारून की नजरें नरम हो गई। ये वो लम्हा था जहाँ माजी के जख्म धीरे धीरे मिटने लगे थे। हवेली में खुशियों की तैयारी शुरू हो गई थी। फिजा में एक नई रोशनी थी, एक नई उम्मीद। बिलाल ने कहका लगाते हुए कहा, आखिरकार मेरा दोस्त भी सुधर गया। हवेली में वही मुस्कान जो कभी मजलूम बनकर आई थी, आज एक नई रोशनी के साथ वापस आई थी। और हारून, वो भी बदल चुका था। तो मेरी जिद नहीं, मेरा इश्क हो मुस्कान, और मुझे जालिम और जाबिर समझना छोड़ दो ना। मैं पहले था ना मैं अब हूँ। ये सब मेरे बारे में गलत अफवाहें हैं। मुस्कान ने हारून को हैरत से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट दबाकर बोली, अच्छा, तो मतलब जो 2 साल पहले मुझे हवेली में छोड़ कर गए थे वो तुम्हारा हमशक्ल था या कोई जुड़वा भाई था जिसने मुझ पर जुल्म किए? बलाल जो करीब खड़ा था कहका लगाकर हंसा। ये हुई ना बात। मुस्कान भाभी, अब देखते हैं हमारे सरदार के पास इसका क्या जवाब है। हारून ने घूर कर बलाल को देखा, फिर मुस्कान की तरफ झुककर धीरे से कहा, मुस्कान, जुबान ज्यादा चली ना तो तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि सारी शोखी निकल जाएगी। मुस्कान ने शरारत से आंखें घुमाई। अरे वाह, निकाह को 2 साल हो गए और तुम्हें अब ख्याल आया कि तुम सजा देने वाले शोहर हो। पहले तो लगता था जैसे मैं हवेली में किसी पुरानी चीज की तरह बस रखती गई हूँ। बिलाल ने खुश होकर तालियां बजाईं। ये हुई ना मेरी वाली मुस्कान भाभी। सरदार, आपसे ज्यादा भाभी की बातों में वजन है। हारून ने गहरी सांस ली और सर झटक कर मुस्कुरा दिया। अल्लाह खैर करे, मैं किसके साथ जिंदगी गुजारने जा रहा हूँ।